Good morning, dear all. Good morning to our guest of today, Sanjog Meshram sir, and welcome. Thank you so much for accepting our invitation and being with us today. We are very happy to have you amongst us to guide our students. Welcome to the students, our own students. You are all like our own children, so there has to be a special bond. And welcome, of course, to the department. In the right at the outset, let me thank Minal Madam for uh, but with taking due social distancing, due precautions, we all have to be very safe. So I wish you all that. Remain safe, stay safe. I will not say stay indoors, but stay safe and take care of yourselves. Take good care of yourselves. Thank you so much. Thank you so much, madam. Please carry on. Thank you, sir. Thank you so much, sir, for your beautiful guidance and considering us to be a one family. And I assure you that TYBSC Mathematics will be the university rankers in few days, in few years. Yes, Vinita, that is what is expected. Yes, very good, very good. Thank you, sir. Thank you, thank you. Now I would like to request our Honorable Wankhede Ma'am, HOD of the Maths Department, to guide us with her precious words. Thank you, Vinita. Today's chief guest, Mr. Sanjog Meshram, sir, our beloved principal, Dr. Moses College, sir, all dignitaries present over here today, all teaching staff and dear friends. A very good morning to you all. It gives me great pleasure to welcome you all during this today's webinar on future perspectives of digital marketing. Digital Guru Sanjog, today's chief guest, Mr. Sanjog Meshram sir, a multi-talented personality with MBA degree from IIM Bangalore, is with us. In spite of having his busy schedule, a very warm welcome to you, sir. Today, the entire scenario of the world got changed drastically due to pandemic. What sorts of career would be available to our future generation is the matter of great concern. A ray of hope can be seen through digital marketing, and that's why we are here to know more about the digital marketing and its future. So I wish all the best to all of you students for your participations. Thank you. Thank you, Vinita. You can carry on. Thank you so much, ma'am, for your best words and arrangement of such a useful webinar on the future perspective of digital marketing. Digital marketing is just the introduction of a particular product, system, government or a private organization, entertainment sector, virtual. Digital marketing is just like a magical stick which creates a miracle. Which miracle? Miracle of making famous to particular products through attractive advertisement. But each and every miracle has its own improvised skills behind it. And today, to getting acknowledged with some of the improvised skills through the respected guests is a golden opportunity. Today, we have been gifted a role model, an ideal personality, Mr. Sanjog Meshram, as our guest. There are the following working areas in which he is showing up his skills. He is working as a mobile, he is having skills in a mobile content, digital marketing, business development, mobile applications, telecommunications, competitive analysis, pre-sales, content management, social media marketing, search engine optimization, search engine marketing, sourcing management, team management, new business development. He had worked as a manager for new business development in June 2000. He had worked as a product manager from January 2004 to June 2006. He had showed his skills as a key account manager from July 2006 to December 2009. He had worked as a manager for VAS from December 2009 to March 2011. He was business head West Region in Hindustan Times Mobile Solutions from March 2011 and April 2013. He had managed the accounts of Airtel, Vodafone, Idea, Arcom and BSNL and media and various brands and agencies.
Again, he was the business head for telecom products from April 2013 to August 2017. And last but not the least, he is the founder of a Zapcode Solutions. Zapcode Solutions is serving software solutions to 200 plus educational brands in India. Also, it is offering digital marketing solutions to 50 plus clients in India as well as in abroad. It had trained 1,000 plus students in the field of digital marketing. A warm welcome to the multi-talented guest. And now I would like to request our honorable chief guest, Mr. Sanjog Mishram, to guide us with his precious words. Thank you, Vinita, and thank you, Moses sir, for such a nice words. And so I would like to start the session. I think the session is of course on digital marketing, but there are multiple factors involved. As Moses sir also mentioned that importance of mathematics, and definitely mathematics is also important role, plays an important role in digital marketing, and every segment of the educational fields, whether it is medical, whether it is pharmaceuticals or engineering, and same applicable to digital marketing. So let's start with the important factors or future prospects of digital marketing. I would be speaking in English and Hindi, okay, so you can all comfortable, because I would like you to understand whatever I'm speaking and whatever suggestions I'm giving to you, because I wanted you people to learn, because someone has mentioned, I think Vinita has mentioned that they are looking forward to the session because people wanted to have some kind of understanding, some kind of learning by end of the session. So my I think aim or goal for the session is the same. So you people, at least few people from your batch, should get some kind of knowledge, some kind of understanding of digital marketing or future prospects, because we are here, young generation. You people are young generation. You have that caliber to change the world, and to change the world, you need one skill, that is important skill, that is digital marketing. Because marketing, I think again, marketing people are quite are not that fascinated about field of marketing. जब भी हम लोग मार्केटिंग के बारे में सुनते हैं तो लोग भागना शुरू करते हैं एक्चुअली. लेकिन डिजिटल मार्केटिंग, व्हेन वी ऐड इन फ्रंट ऑफ मार्केटिंग, तब लोगों को लगता है कुछ तो अलग है. But that is not the thing. Okay, we are here to market ourselves. If you are appearing for your interviews after your graduation, you are going to market yourself, and you are going to market yourself in front of your organization where you are going for the interview, and that organization also going to market their company to you. So everywhere is marketing. I think I can say that from the childhood to the age you have, or my age, we all are marketing ourselves. In fact, I'm also marketing myself here in front of you, and new people are also marketing. Your college is marketing there, because everything has to be marketed. Okay, we have to speak loudly about our skills, about our importance, about our USP. I hope you understand USP. USP is a unique selling proposition. So everyone has a USP, and we have to promote that USP to in front of everyone. So हम लोगों को हमेशा ध्यान रखना है कि हमारी USP हमेशा हटके होनी चाहिए. We have to be different. We have to be little different, because हम लोग individuals हैं और सब में अलग अलग स्किल होती है. तो अलग अलग स्किल से मतलब हमारी USP अलग अलग हो गई है, और उसी स्किल्स को पकड़कर we have to decide what exactly the future in the another corner. वही हम लोगों को सोचना है. So let's start. Okay, on the digital marketing platform. So this is the site Digital Trends. Okay, and I'm taking you to this. You have to just change India. हम लोग इंडिया देख रहे तो इंडिया कर देते हैं यहाँ पर. एंड मैं आपको दिखा रहा हूं, हम लोग देख रहे थे टीवी. इसके सर्चेस क्या है? गूगल ट्रेंड्स में आप जो भी सर्चेस करते हो दिन भर में गूगल के ऊपर में, उसके रिजल्ट्स कोलैबोरेट हो जाते हैं यहाँ पर, एंड यू कैन सी एक्चुअल रियल टाइम रिजल्ट्स ऑफ टीवी सर्चेस फॉर द एंटायर ईयर. सो दिस इज द टीवी सर्चेस. और टीवी पे सर्चेस जो आ रहे हैं वो ये सर्चेस है. अब हम लोग देखेंगे, हम लोग ऑनलाइन. You can compare both the fields here itself. This is the real time data. So you can see here, so red one is online and the blue one is TV.
तो इस तरह का ग्रोथ जो है डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड है. लोग ऑनलाइन ज्यादा सर्चेस करते हैं rather than टीवी. तो ये चीजें जो है अभी चेंज हो गया प्रोस्पेक्ट. ओके, यू कैन सी वेरी आई थिंक 27 एवरेज और यहाँ पर 85. So you have to prefer your career goals respective to the this kind of results. Go to the Google Trends and check whatever you want. Okay, हम लोग यहाँ पर ये भी देख सकते हैं. यहाँ पर मैं अभी आपको और भी दिखा देता हूँ. यहाँ पर जैसे हम लोग अभी ऑनलाइन पे हैं और हम लोग अगर सर्च करते हैं यहाँ पर फार्मा या फिर रिटेल, these are the segments, industry segments. Okay, I can tell you that yeah, you can see here the curves. Online curve is much higher than other curves. Okay, so digital industry has that kind of, this is, you can see the territory wise breakups as well, like Manipur, Pondicherry, Tamil Nadu, Karnataka, Odisha, what are the states. Okay, you can see here and you will get the multiple results from here, and you will understand that online marketing is the only marketing or only field which is growing after COVID-19 pandemic. So bring your senses or bring your expertise or get your knowledge or expertise trained on digital platform. So this is what the first tool. Okay. So next I'll tell you what is the entire market size of digital marketing. Digital marketing spends little more than 25,000 crore by 2021. अगर आई थिंक मैंने सुबह देखा, मैंने अंबानी का टोटल नेटवर्क जो है, मुकेश अंबानी का टोटल नेटवर्क कल तक सितंबर 11 तक जो है 88.6 बिलियन डॉलर का है, और दिस वाज, और डिजिटल मार्केटिंग का जो है 539 बिलियन का होने वाला है बाय 24. तो यू कैन से दैट 86 के आगे अगर 539 हम लोग कंपेयर करना शुरू करें, तो दिस इज व्हाट द इंडस्ट्री साइज इज. अंबानी, कई सारे अंबानी, मतलब कम से कम 5-6 मुकेश अंबानी को जोड़कर डिजिटल मार्केटिंग का एक्सपेंशन होने वाला है. तो गाइस, अगर अभी भी आप लोग डिजिटल मार्केटिंग में नहीं हो तो यू हैव टू थिंक दैट दिस इज द ओनली मार्केट जहां पर आपको बहुत सारे जॉब्स और बहुत सारा कंपटीशन करना है मुकेश अंबानी के साथ में. तो दिस इज द ओनली थिंग, बिकॉज आई थिंक मोस्ट ऑफ द पीपल फ्रॉम दिस ग्रुप मस्ट बी फ्रॉम मिडिल क्लास बैकग्राउंड, लोअर क्लास बैकग्राउंड. आई थिंक वी हैव टू बी वेरी क्वाइट इंडिपेंडेंट, और इंडिपेंडेंस का नाम है डिजिटल मार्केटिंग. मैं बताऊंगा आपको आगे के स्लाइड्स में किस तरह से बिना इन्वेस्टमेंट्स के भी आप लोग जो है अपना करियर बना सकते हो. Only thing is that हम लोगों को जो सबसे इंपॉर्टेंट, जैसे ये फील्ड्स है, these are few fields: सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, ब्लॉगिंग, सर्च इंजन मार्केटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग, मोबाइल मार्केटिंग, ईमेल मार्केटिंग, कंटेंट मार्केटिंग, ऑनलाइन रेपुटेशन मार्केटिंग. ऑनलाइन रेपुटेशन मार्केटिंग again quite important. All these are the fields where you can explore your careers. Okay, I think when I started my career, I think I started with search engine optimization, and then I learned about blogging, then I learned about marketing. Okay, you have to start one of the field. Okay, you have to create your interest. As I mentioned, do you need a technical knowledge to start your digital marketing? अगर आपके दिमाग में कहीं पर भी क्वेश्चन आता है कि हम लोगों को कोडिंग आनी चाहिए वेबसाइट डेवलपमेंट करने के लिए, तो आप लोग गलत हो, यू आर रॉन्ग. ओके, यू डजंट नीड टू लर्न अबाउट टेक्निकल नॉलेज. ओके, आपके पास में कोडिंग की नॉलेज, जावा प्रोग्रामिंग या फिर आप लोग पीएचपी प्रोग्रामिंग पे अगर कोडिंग करना चाहते हो तो वेरी गुड. आई थिंक इफ यू हैव अ इंटरेस्ट देन गो अहेड विद दैट. बट if you want to be a digital marketer, you want to create your own website, you want to create your own blogging site, you no need to have a technical knowledge. I'm non-technical person, although I'm a mechanical engineer by profession, but I doesn't understand coding. But still I can develop a website by my own. I have developed my website by my own. Okay, I'll show you what website I have developed. Okay, and वो website आप भी develop कर सकते हो. So as I mentioned here, you need an interest rather than knowledge. गाइस, हम लोग ये सोचते हैं, आई थिंक बहुत बार हम लोग सोचते हैं कि नॉलेज ले लेते हैं. बहुत हम लोग, हमारे कंपटीशन होता है फ्रेंड्स लोगों में कि यार उसको इतना नॉलेज है, हम लोग भी उसमें नॉलेज लेते हैं, लेकिन इंटरेस्ट कहीं तो गुम हो जाता है. आई थिंक इट्स क्वाइट इंपॉर्टेंट टू हैव अ क्रिएट अ इंटरेस्ट फर्स्ट. ओके, फोकस योर करियर गोल्स अराउंड द इंटरेस्ट. अगर आपके इंटरेस्ट के साथ आपका फोकस चल रहा है, आपके एम्स गोल्स चल रहा है, तो डेफिनेटली यू विल बी सक्सीड योर लाइफ और यू विल एंजॉय योर लाइफ. सक्सेस मींस नथिंग बट आई थिंक पैसा कमाना नहीं होता है. You have to be happy with your work. You can give 24 hours to your job. That is what the interest. अगर आपका interest है तो आप 24, जैसे as like watching movie. If you watch movie and if you go to theaters and you watch movie for 3 hours,
वी रियली एंजॉय दैट पीरियड. हम लोगों को कुछ याद नहीं रहता बाहर की दुनिया में क्या हो रहा है, बिकॉज मूवी क्रिएट दैट काइंड ऑफ इंटरेस्ट अमॉन्ग अस. तो उसी तरह का इंटरेस्ट अगर आपके फील्ड में, आप कोई भी फील्ड इसमें से चूज कर सकते हो आप. मैं बताऊंगा किस तरह से फील्ड चूज करना है, वो भी बताने वाला हूं अभी एट प्रेजेंट, अभी इसी वक्त. कैसा होता है कि हम लोग इंटरेस्ट पता करने के चक्कर में पूरे बहुत सारे साल इन्वेस्ट कर देते हैं, पता ही नहीं चलता क्या करना. हमारा इंटरेस्ट क्रिएट करता है हमारे फ्रेंड्स, हमारे फैमिली. जैसे पेरेंट्स का समझ हमारे सोचते हैं यार तू एक काम कर, इंजीनियर बन जा, तू डॉक्टर बन जा, तू लॉयर बन जा, या कोई आर्मी में जा रहा है तो आर्मी कर लेते हैं, कोई पायलट बन रहा है कोई पायलट बन जाता है. दिस इज नॉट अ इंटरेस्ट यार. ये तो हम लोग सुनते किसी और का और हम लोग पीछे भागना शुरू करते हैं. आपका इंटरेस्ट तो आपको पता होना चाहिए, और कैसे पता करना है इसके लिए हम लोग कई साल लगा देते हैं. बट आई थिंक विद द हेल्प ऑफ डिजिटल मार्केटिंग आई विल टेल यू दैट हाउ टू फाइंड आउट योर इंटरेस्ट एज वेल. इंटरेस्ट को बोलते हैं नीश. ओके, सो यू हैव टू क्रिएट योर नीश. नीश क्या होता है? आई थिंक सपोज आई हैव अ इंटरेस्ट इन डिजिटल मार्केटिंग, but still niche is the field which is related with the micro interest. इंटरेस्ट के अंदर में जो इंटरेस्ट होता है उसको niche बोलता है. तो हम लोगों को आई थिंक वी हैव टू रीच दैट पॉइंट ऑफ प्रोडक्ट और पॉइंट ऑफ फील्ड जहां पर हम लोग को पता चले कि ये हमारी niche है. अब कैसे पता लगाते हैं niche? तो एक साइट है गाइस, उस साइट पे लेके चलता हूं आप लोगों को. मैंने ओपन करके रखी है उस साइट को. सो दिस इज अ साइट, एंजाइन आर्टिकल्स हैं. मैं जब भी कंफ्यूज होता हूं तो इस आर्टिकल से बहुत सारी आइडियाज आती है मुझे, और मैं वही साइट बता रहा हूं यहाँ पे, एंजाइन आर्टिकल्स. आई शेयर दिस साइट विद तमिल मैम. आई थिंक शी कैन शेयर विद यू ऑल यू गाइस. आई शेयर द प्रेजेंटेशन एज वेल. सो नो नीड टू पॉइंट आउट द नोट्स. आपके पास में इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन राइट मी राइट नाउ. ओके, नो नीड टू वेट टिल द सबमिशन ऑफ द or completion of this session. You can start interrupting me and you can ask your questions right now. So articles. So there are multiple fields you can see here. If you want to find your niche or your interest, you need to find out in which field you are good enough. Okay, like arts and entertainment, business, computer, gaming, technology, or internet, legal, real estate, whatever the field you have. Suppose I am interested in book reviews. So I'll go into book reviews. जैसे मैं बुक रिव्यूज में जाऊंगा तो अगेन आई हैव मल्टीपल फील्ड इनसाइड ऑफ बुक रिव्यूज. लाइक विच टाइप ऑफ बुक? इज इट कंप्यूटर बुक, डांस बुक, फिक्शन बुक, होम गार्डन, इंटरनेट, और वॉट एवर, क्रॉकरी, या फिर मेंस, मिस्ट्रीज, थ्रिलर. ओके, सो नाउ यू आर गोइंग इनटू द niche finalization. This is very important guys. If you want to start your career into digital marketing, you have to find out your niche, your interest. Suppose मुझे पेट्स में इंटरेस्ट है. ओके, गुड इनफ. यू कैन बी अ ब्लॉगर ऑन द पेट्स. देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ, देयर इज नथिंग टू शाय अबाउट इफ यू हैव अ इंटरेस्ट ऑन पेट्स. इफ यू हैव अ इंटरेस्ट इन पोएट्री, इफ यू आर इंटरेस्ट इन स्पोर्ट्स लिटरेचर, गो अहेड. यू विल बी earner for your family if you work for your interest right now. Okay, no, I think as the sir mentioned, you have a final examination very soon, and then you will be graduate very soon, and then you will start finding your niche or your work profile. I think this is the right time to think about your interest. If you are interested in romance, go ahead and write articles on romance. There is nothing bad about it. I think we have to create our interest into money. That is what I mean to say. हम लोगों को हमारे इंटरेस्ट को मनी मेकिंग में कन्वर्ट करना है. अब वो कैसे करना है? हम लोग सपोज मैं इफ आई एम इंटरेस्टेड इन पेट्स, तो आई विल गो इनटू पेट्स. ओके, पेट्स में भी बहुत सारी ब्रीड्स होती है. अब मैं माइक्रो निश की तरफ जा रहा हूं. मैं कौन सी पेट्स के बारे में बात कर रहा हूं? जैसे कैट्स है, या पर्शियन कैट्स है, या डॉग्स है, या फिर देयर आर मल्टीपल निश फाइनलाइजेशन. सो यू हैव टू फाइंड आउट व्हिच डॉग यू आर इन बेटर इनटू. ये चीजें मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग के लिए ये चीजें बहुत जरूरी है कि आप अपने नीश को फाइनलाइज करो. उसके बाद में आप ब्लॉगर बन सकते हो, आप सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन कर सकते हो, या फिर वॉट एवर फील्ड यू आर डेल्ट विद. दिस इज द साइट दैट इंटरनेट यूजर्स इन द वर्ल्ड वाइड. कितने यूजर्स है? आई थिंक दिस इज पर सेकेंड यूजर्स. ओके, द नंबर्स आर गेटिंग चेंजिंग विद इन द सेकेंड्स. सो दीज आर इंटरनेट यूजर्स. देन वेबसाइट्स, टोटल नंबर ऑफ वेबसाइट्स, then total number of email sending in this second, Google searches in this second, blogs written today, 33,25,000 and counting per second. I am talking about blogs are getting written. Tweets, then YouTube videos,
than photos uploaded today on Instagram. 4 crores 11 lakhs per second. So I hope you are just trying. I think I would like to tell you that I hope you need to understand. Their computer sold 3 lakhs 19,000, smartphones sold. So this is what the digital marketing is. Okay, if you are still away from this, I know that you are having an handset and you do Google search or Facebook search or image upload everyday basis, but that is not the future. Okay, future is when you are converting your interest into money making. Okay, you have to generate money or revenue out of your interest. That is what the digital marketing. अगर आप Facebook के ऊपर में हो और अपने पिक्चर्स अपलोड कर रहे हो and you are waiting to get likes और लाइक्स के साथ साथ आप सोच रहे हो कि कमेंट्स भी आने चाहिए, तो वो ठीक है पर्सनल लेवल पर, उससे कोई बेनिफिट नहीं हो रहा है. आपको तब वो करना है कि आपका इंटरेस्ट, आपका प्रोडक्ट पॉपुलर करना है विद द मीडिया विच यू ऑलरेडी हैव इन योर हैंड, उसको पॉपुलर करना है. दैट इज व्हाट द डिजिटल मार्केटिंग, बिकॉज पीपल आर डूइंग इट. आप लोग नहीं कर रहे हो तो लोग कर रहे हैं. तो अगर आप लोग नहीं कर रहे तो आप पीछे हो उन लोगों से, आपका कंपटीशन इतने सारे लोगों से है. तो दैट इज व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड. स्टिल यू हैव अ स्पेस कि आप लोग किस तरह से कॉम्पीट करो. अब मैं वो भी दिखाऊंगा आपको, जैसे मैंने कहा कि गूगल साइट पे ऊपर लेके चलता हूं. जैसे सरकारी जॉब्स, मैंने कीवर्ड टाइप किया यहां पर, और सरकारी जॉब्स कीवर्ड टाइप करने के बाद मुझे ये एक साइट दिख रही है. ओके, इस साइट को मैं ओपन करता हूं. Yeah, right. So I was talking about this site. Okay, the site doesn't add any value. They are just copying content from government site and posting here, but still they are getting advertisement from Google Ads. You can see here ads by Google. So this website has been collaborated with Google AdSense, and Google is paying them huge amount of money just for this copying and pasting these blogs. So this company has near about 4 lakhs traffic per month. 4 लाख लोग इस साइट के ऊपर में आते हैं और सरकारी जॉब. इसी तरह से बहुत सारे कीवर्ड्स होते हैं जहां पर आप देख सकते हो कि किस तरह के, एक 1 सेकंड आपको दिखा देता हूं मैं. या सो आई हैव अ टूल हियर. ओके, यू कैन सी domain traffic 2,24,976 has been the traffic they have on this site. Similar applicable at 52,000. ये जो साइट्स के ट्रैफिक है, इस ट्रैफिक का 50% रेवेन्यू उनको आता है. अगर there is a traffic called 2,24,000, then they must have earning 1.5 lakh or 1.2 lakhs rupees per month with the help of just simple one site. So that is the reason you have to be a passionate about what you want to do. Okay, suppose if you are good into pets, if you are good into books, if you are good into singing, if you are good into acting, write blogs and start creating content or video content, irrespective of the content. If it is video content or if it is blogging, all right, I think you can earn money, hell lot of money from these resources. I'm talking about money only because digital marketing is nothing but money. Okay, so हम लोग किस तरह से अपना फ्यूचर क्रिएट कर सकते हैं. यू कैन स्टार्ट योर ऑर्गेनाइजेशन एज वेल, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन ऐसी शुरू होती है. डिजिटल मार्केटिंग, एज आई मेंशन इन द प्रेजेंटेशन एज वेल, देयर आर मल्टीपल फील्ड. सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, सो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन मींस सरकारी जॉब्स अगर मैं कीवर्ड डालता हूं और ये साइट जो है नंबर 1 पोजीशन पे आ रही है, इसका मतलब इसका सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन हुआ है. मतलब इस साइट का, इस वेबसाइट का जो साइट है, इसने सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन किया है. यहाँ पे कीवर्ड्स यूज किए हैं. सरकारी जॉब्स दिख रहा है आपको यहाँ पर, ये कीवर्ड्स यहाँ पे यूज किए ताकि ये कीवर्ड्स पे आप सर्च कर सको और गूगल के नंबर 1 पेज पे रैंक कर पाए. दिस इज व्हाट द सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन. और ये फ्यूचर है. मैं अगेन टॉकिंग अबाउट डिजिटल मार्केटिंग ट्रेंड्स, सो एसईओ प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल. जो हम लोगों को जो आई थिंक व्हाट आर द कीवर्ड्स वी आर प्लानिंग, बिकॉज गूगल इज नथिंग बट गूगल और एनी सर्च इंजन, देयर आर मल्टीपल सर्च इंजन लाइक गूगल, याहू, यांडेक्स, देयर आर मल्टीपल. इनफैक्ट Baidu is closed now because of Chinese applications have been closed by the government. तो ये सब जो है सर्च इंजिन्स है, और इन सर्च इंजिन्स के ऊपर में किस तरह से कीवर्ड प्लेसमेंट करते हैं इसको कहते हैं, मतलब वेबसाइट के ऊपर में जो कीवर्ड प्लेस करते हैं हम लोग, वो कीवर्ड्स इस गूगल के सर्च इंजिन्स के ऊपर में शो करना है हमको. इसी का नाम होता है सर्च इंजिन. तो सर्च इंजिन के थ्रू यू कैन rank your website, your videos, your content, your images and show it to the people who want to search. और जब वो people जो भी देखते हैं उस content को, you will start earning money out of that search engine optimization.
then let's try to understand what is affiliate marketing. I think आप लोगों ने सुना होगा शायद. I'm not sure if you have heard about affiliate marketing. Affiliate marketing again plays very important role in digital marketing. I'll tell you what is affiliate marketing. I'll take you to the Amazon. Okay, so because affiliate marketing होता क्या है, जैसे हम लोग हमारे यहाँ पर एजेंट्स हुआ करते थे पहले, जो LIC एजेंट्स हुआ करते, अभी भी हैं LIC एजेंट्स आते हैं हमारे यहाँ पर, एंड दे सेल देयर पॉलिसीज, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज, मेडिकल पॉलिसीज. ओके, बेसिकली LIC एजेंट्स जो होते हैं वो जॉब नहीं करते, दे आर एजेंट्स टू द LIC. ओके, दे आर गेटिंग पेड कमीशन. ओके, कमीशन उनको मिलती है बाय सेलिंग इंडिविजुअल पॉलिसीज. सो वो जो इनकम होता है, वो जो इनकम है उसी को एफिलिएट इनकम कहते हैं. तो एफिलिएट मार्केटिंग मतलब इट डजंट नीड टू ओन योर प्रोडक्ट. आपके पास में आपका प्रोडक्ट होना जरूरी नहीं है. जैसे आई एम ऑन Amazon एफिलिएट साइट. ओके, मैं यहां पर, अब मैं आई एम ऑलरेडी यहां पर साइन इन हूं यहां पर. वन सेक, या तो ये मेरा Amazon का अकाउंट है जहां पर मैंने साइन इन किया है, और आप भी यहां पर गूगल पे जाके साइन इन कर सकते हो. नो, देयर इज नो इन्वेस्टमेंट, दैट इज कुछ सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट्स की जरूरत नहीं पड़ती. यू जस्ट नीड टू गो देयर, रजिस्टर योरसेल्फ विद द सिंपल ईमेल आईडी एंड स्टार्ट प्रमोटिंग देयर प्रोडक्ट्स. अभी Amazon के पास में बहुत सारे प्रोडक्ट्स है, जैसे ये प्रोडक्ट्स यहाँ पे दिख रहा है. ओके, अब मैं सपोज ये डेटॉल का जो है यहाँ पर 209 का यहाँ पर प्रोडक्ट दिख रहा है, इसको मैं ओपन कर लेता हूं. यहाँ पर आई एम ऑन Amazon एफिलिएट अकाउंट. ओके, यहाँ पे मुझे कोड दिखाई देता है. यहाँ पर मैं ये कोड को उठा लेता हूं, कॉपी किया मैंने कोड यहां से. बहुत सिंपल टेक्निक है एक्चुअली. ओके, अब मैं, मेरा ब्लॉगिंग साइट है एक, मैं वहां पे जा रहा हूं. मैं ब्लॉगिंग साइट पे आ चुका हूं, रजिस्टर कर लिया था मैंने पहले, मैं आया माय ओन ब्लॉगिंग साइट. ओके, वहां पे आ गया हूं मैं. यहाँ पे नया पेज ओपन कर लिया मैंने, और मैंने यहां पर इस कोड को पेस्ट करना है मुझे. इस कोड को जो कॉपी किया मैंने, यहां पे मैं पेस्ट कर रहा हूं. मैं यहां पर इस कोड को पेस्ट कर दिया मैंने. ओके, अब मैं यहां पर फिर से, अब मैं प्रीव्यू करूंगा मैं इस प्रोडक्ट का. सो आई कैन सी द प्रोडक्ट ओवर हियर. आप देख सकते हो ये प्रोडक्ट यहां पे आ चुका है, और इस प्रोडक्ट की लिंक मैं इस कॉपी करके मैं किसी को भेज रहा हूं व्हाट्सएप के ऊपर में, या फिर मैं फेसबुक अकाउंट पे डाल रहा हूं. मेरे पास में सपोज 1000 फ्रेंड लिस्ट में फेसबुक ग्रुप पे है, या इंस्टाग्राम पे मेरे फॉलोअर सपोज 1000 है या 2000 है. वहां पर मैं इसकी लिंक बायो में डाल दी मैंने, या फिर हमारे फ्रेंड्स को मैंने शेयर किया, उनको कहा कि ये शॉप करो. जब शॉपिंग शुरू होगी, इसका 10% आपको मिलना शुरू होगा. दिस इज व्हाट द इनकम, दिस इज व्हाट द एफिलिएट मार्केटिंग. एफिलिएट मार्केटिंग करने के लिए, जैसे मैंने आपको पता है अभी 5 मिनट के अंदर में उतना ही समय लगता है आपको एफिलिएट मार्केटिंग पे प्रोडक्ट्स, क्योंकि यहाँ पे बहुत से पीपल वांट, लाइक Amazon कंपनी जो है वो लोग चाहते हैं कि हम लोग वहां पर जाएं और उनके प्रोडक्ट प्रमोट करें. जितने भी प्रोडक्ट्स हैं यहाँ पर Amazon साइट के ऊपर में, जो भी प्रोडक्ट्स हैं, आपको जस्ट वो प्रोडक्ट कॉपी करना है. I'm going to the Amazon page. Okay, this is Amazon site. और यहाँ पर बहुत सारे प्रोडक्ट है. सपोज आई वांट टू सेल दिस प्रोडक्ट, डिश वॉशर और वॉशिंग मशीन. ओके, सो मैं वॉशिंग मशीन ओपन करने के लिए मैं यहाँ पर इसको मैंने सिलेक्ट कर लिया प्रोडक्ट. इसी तरह से हम लोग शॉपिंग करते हैं जनरली Amazon पर, और मैंने ये प्रोडक्ट देख लिया, इसको ओपन कर लिया. मुझे ये 13,000 का प्रोडक्ट जो है, इसकी एफिलिएट मार्केटिंग करनी है. आई एम नॉट गोइंग टू बाय इट. ओके, आई एम गोइंग टू, क्योंकि सपोज मुझे किसी को सेल करना है, किसी को रिक्वायरमेंट है इस प्रोडक्ट की, तो मुझे करना क्या है, साइट के ऊपर में ब्लॉग क्रिएट करना है. ओके, ब्लॉगिंग साइट क्रिएट करनी है. इसका कोड यहाँ पे दिखेगा आपको, यहाँ पर एक टेक्स्ट इमेज जो दिख रहा है, यहाँ पे कोड दिखेगा, यहाँ पे कोड दिख रहा है ये नीचे में. इसको मुझे कॉपी करना है अगेन, और अगेन मैं ब्लॉगिंग साइट पे आ गया हूं, और मैंने इसको यहां पे पेस्ट कर दिया. और फिर से एक बार रिव्यू देख रहे हैं हम लोग. अब मेरे पास में 2 प्रोडक्ट्स आ गए. सो आई हैव 2 प्रोडक्ट्स. अब यहां से जो परचेस होगा उसका 10% मींस कितना रेवेन्यू होगा, 13,000 की वॉशिंग मशीन है ये. ओके, तो 10% मतलब आई थिंक यू कैन कैलकुलेट हाउ मच मनी वी आर गोइंग टू अर्न आउट ऑफ सेलिंग वन सिंगल प्रोडक्ट.
और दिस इज व्हाट द एफिलिएट मार्केटिंग, और यही सब कुछ हो रहा है। एफिलिएट मार्केटिंग आप जो है Amazon के साइट के थ्रू कर सकते हो, या फिर फ्लिपकार्ट के थ्रू कर सकते हो, मिंत्रा के थ्रू, या फिर आप स्विगी के थ्रू कर सकते हो, जोमेटो के थ्रू कर सकते हो। यू कैन स्टार्ट डूइंग एफिलिएट मार्केटिंग विद एन नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स। तो सब लोग चाहते हैं कि एफिलिएट मार्केटिंग के थ्रू प्रोडक्ट सेल हो। वी आर प्रमोटिंग देयर प्रोडक्ट्स एंड वी आर earning income. So this is what the affiliate marketing. Now I'll take you the next type of income, again passive income. अब बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोग जो है, अभी ये वन टाइम सेल हो गया, जब आप लोग एक चीज सेल करते हो और उसका मल्टीपल टाइम आपके पास में इनकम आना शुरू होता है। सपोज इफ यू सोल्ड वन सॉफ्टवेयर, आप लोग सॉफ्टवेयर सेलिंग करना चाहते हो, और सॉफ्टवेयर सेलिंग करने के बाद उसका जो इनकम है आपको हर मंथ आएगा। जैसे मैं सब्सक्रिप्शन करता हूं, जैसे मैं टाटा स्काई का, मेरे पास में कनेक्शन है और टाटा स्काई का सब्सक्रिप्शन कर लिया मुझे, और उसके बाद में हर मंथ मैं उसको रिन्यू करते जाऊंगा। जैसे हमारा मोबाइल कनेक्शन है, हर मंथ हम लोग को बिल पे करना है, अदरवाइज हमारा कनेक्शन कट हो जाता है। तो दिस इज व्हाट द सब्सक्रिप्शन। ओके, तो ये सब्सक्रिप्शन वाले प्रोडक्ट्स जो होते हैं, यहां पर इस तरह से, ये कमीशन जंक्शन करके एक साइट है जहां पे आप फ्री में जाके रजिस्टर कर सकते हो, कमीशन जंक्शन, और वहां पे मल्टीपल प्रोडक्ट्स है, और यहां पर आपको 40 to 60% का इनकम मिलता है इन प्रोडक्ट्स के ऊपर में। अगेन ये प्रोडक्ट जो है आपको प्रमोट करने हैं गाइस। प्रमोट कैसे करने हैं आपको? बाय क्रिएटिंग योर वेबसाइट। तो वेबसाइट किस तरह से क्रिएट करते हैं, अब ये पॉइंट आता है। वेबसाइट क्रिएट करने के लिए बहुत से टूल्स हैं, और फ्री में आप वेबसाइट क्रिएट कर सकते हो, और वो भी 1 आवर्स के अंदर में। उसके लिए है blogger.com, जैसे ये साइट मैंने बताई आपको, यहां पर हूं मैं। So so this is one of the blog, you can say that। मैं आपको ब्लॉग दिखा देता हूं। सपोज ये ब्लॉग है मेरा, और so this is the blog, okay। और इसको प्रीव्यू करके देख लेते हैं। ये ब्लॉग है, इस ब्लॉग के ऊपर मैं हाउ टू लर्न वेबसाइट एट फ्री ऑफ कॉस्ट, ये ब्लॉग है, एक वीडियो डाला और कुछ कंटेंट है। अगर मैं इसके ऊपर मैं प्रोडक्ट्स भी डालना शुरू करूं, सो दैट इज गोइंग टू बी एफिलिएट मार्केटिंग। और वो प्रोडक्ट का अगर मुझे सॉफ्टवेयर, जिस तरह से प्रोडक्ट है, यहाँ पे प्रोडक्ट्स आपको मिलेंगे यहाँ पर कमीशन जंक्शन के साइट के ऊपर। आई थिंक मुझे लगता है 1 घंटे का वक्त काफी कम है आपको समझाने के लिए, बट आई एम हियर, आई एम गोइंग टू टेल यू दैट ये जो टूल्स है ये आप खुद भी अपने यहाँ पर ट्राई कर सकते हो घर में, या फिर विद द हेल्प ऑफ यूट्यूब वीडियोस। आप मेरे वीडियोस भी देख सकते हो यूट्यूब चैनल के ऊपर में, वहां पर जाकर भी यहाँ पर इन टेक्नोलॉजीज को आप यूज करके, इन साइट के ऊपर रजिस्टर करके इन प्रोडक्ट्स के ऊपर में ब्लॉग करना शुरू करोगे। आई एम टॉकिंग अबाउट ब्लॉगिंग विद योर इंटरेस्ट। अगेन मैं इंटरेस्ट के ऊपर में आ रहा हूं। अगर इफ यू आर इंटरेस्टेड इन सॉफ्टवेयर, इफ यू आर इंटरेस्टेड इन गेमिंग, start writing blogs or start creating content or start creating videos or start creating very important point, that is podcast. I hope you must have heard about podcast. पॉडकास्ट के ऊपर में आई थिंक अगर आप लोगों को एज अ न्यू डिजिटल मार्केटर्स हो और आपको अगर डिजिटल मार्केटिंग में करियर शुरू करना है, तो आपको वो प्लेटफॉर्म्स ढूंढने हैं जिन प्लेटफॉर्म के ऊपर में कंपटीशन कम है। ऑलरेडी पॉडकास्ट इज अ चैनल, अगेन इज अ सोशल मीडिया चैनल वेयर यू, आई थिंक जिस तरह से यूट्यूब होता है उस तरह से पॉडकास्ट है, वेयर यू हैव टू रिकॉर्ड योर वॉइस ऑडियो फाइल्स एंड दोज ऑडियो फाइल्स कैन बी हर्ड बाय अदर पीपल। सिमिलर लाइक FM रेडियो चैनल्स होते हैं। जैसे FM रेडियो चैनल्स के ऊपर में हम लोग डिसाइड नहीं करते कि मुझे एक सॉन्ग कौन सा सुनना है। अगर आप कहीं पे जा रहे हो, लोकल में ट्रैवल कर रहे हो, कार ड्राइव कर रहे हो, तो आपको डिसाइड FM चैनल जो है, मिर्ची चैनल जो है, या फिर जो भी जितने भी FM चैनल्स हैं, बिग FM, वो चैनल्स उनके सॉन्ग सुनाते हैं और उनकी एड्स आपको सुननी पड़ती है। लेकिन अगर आपका कोई इंटरेस्ट हो, कोई स्पेसिफिक सॉन्ग सुनना है या कोई वीडियो सुनना है या किसी कंटेंट के बारे में जानना है, तो दिस इज द राइट वे। पॉडकास्ट में इंडिया में अभी अभी शुरू हुआ है। अगर आप अपने पॉडकास्ट की वीडियो क्लिप्स बनाना शुरू करते हो, दोज पीपल हु आर नॉट स्क्रीन प्रेजेंस, जिनका वीक है, दे आर नॉट कंफर्टेबल इन फ्रंट ऑफ द स्क्रीन, दे आर नॉट कंफर्टेबल टू क्रिएट देयर ओन वीडियोस, दे हैव टू जस्ट क्रिएट देयर वॉइस रिकॉर्डिंग्स। और वॉइस रिकॉर्डिंग करके फ्री टूल है जिसका नाम है Spotify। इस Spotify चैनल पे आप फ्री में अपने आप को रजिस्टर कर सकते हो और यहां पे अपने ऑडियो फाइल्स डाल सकते हो, जैसे मैंने डाली है। अब इस ऑडियो फाइल्स के ऊपर में जितने व्यूज आना शुरू होंगे, जितनी बार मुझे व्यूज आना शुरू होंगे, उतने व्यूज के ऊपर Spotify विल स्टार्ट पेइंग मी। अगेन इंटरेस्टिंग टॉपिक होना चाहिए आपका इंटरेस्ट। अगर आप
पेट्स के बारे में लिख रहे हो, अगर बुक रिव्यूज के बारे में या मूवी रिव्यूज के बारे में लिख रहे हो या फिर बोल रहे हो, उसकी रिकॉर्डिंग्स आपको यहाँ पे अपलोड करनी है, एंड देन स्पॉटिफाई विल अप्रूव दोज रिकॉर्डिंग्स, एंड यू विल बी द रेडियो जॉकी जिस तरह से रेडियो चैनल की जरूरत पड़ती है, कुछ सालों बाद रेडियो सुनना बंद हो जाएगा और सिर्फ लोग पॉडकास्ट सुनना शुरू करेंगे. So this is the right time you all you guys to start your career or look this option called podcast. Podcast is again very important in UK, US, Australia. These countries में भी podcast काफी सुने जाते हैं. Those people who are comfortable with other languages like including English or other Spanish language, they can create those podcasts and share those podcasts with those countries, or you will start earning money. This is a career opportunities. Okay, ये कोई जो डिस्कस कर रहे हैं हम लोग, वो डिस्कशंस हम लोग हॉबीज के लिए नहीं कर रहे हैं. वी आर डिस्कसिंग अबाउट करियर्स. ये करियर के ऑप्शंस बन सकते हैं पॉडकास्ट जैसा प्लेटफॉर्म. अगेन सोशल मीडिया मार्केटिंग अगर शुरू करना है आपको, जैसे मैंने कहा कि फेसबुक, इंस्टाग्राम पे सब लोग अवेलेबल रहते हैं, लेकिन पिंटरेस्ट का मैं आपको एक बताता हूं. पिंटरेस्ट इज अगेन क्वाइट पॉपुलर सोशल मीडिया चैनल, लेकिन हम लोग काफी उसमें कम अवेलेबल रहते हैं. मैं आपको पिंटरेस्ट का एक मैजिक दिखाता हूं आपको यहां पर. Pinterest I started 5 months back, okay, and when I started Pinterest, I had 0 viewers. Today I have 294.8 thousand, 3 lakh viewers per day. मेरे चैनल के ऊपर में, इस मेरे पेज के ऊपर में 3 लाख लोग एवरीडे विजिट करते हैं, सॉरी पर मंथ विजिट करते हैं, और मेरे जो भी पोस्टिंग्स हैं, इन पोस्टिंग्स को लोग व्यू करते हैं Pinterest के ऊपर में. ये कर्व है, आप देख सकते हो, यहाँ पे 377.61 थाउजेंड इंप्रेशन आया, मतलब 4 लाख के आसपास, 4.25 लाख, और यहाँ पे 294 लाख व्यूज आए, मतलब 3 लाख के आसपास. एंगेजमेंट 18,000 लोगों ने एंगेज हुआ है, मतलब वो शेयर किए पोस्ट, और 16.11 थाउजेंड जो है लोगों ने ऑडियंस एंगेजमेंट भी हुई है. और पोस्ट किस तरह से आप देख सकते हो. आई थिंक स्पेशली दिस Pinterest इज एप्लीकेबल फॉर गर्ल्स. मैं आपको दिखाता हूं मेरी सबसे फेमस पोस्ट कौन सी है. यू विल बी सरप्राइज. ये पोस्ट है जिसके ऊपर में कम से कम 1 लाख व्यूज आए हुए हैं, और इन पोस्ट के थ्रू सपोज मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूं तो वेबसाइट के ऊपर में जाते हैं हम लोग. मैं आपको वो भी दिखाता हूं. और वेबसाइट के ऊपर में जाने के बाद आप लोग जो है 1 सेकंड, yeah, suppose this is the article. ये आर्टिकल है यहाँ पर जिसका पोस्ट बना है, ब्लॉग केस स्टडी ऑन स्टारबक्स. स्टारबक्स आपको पता है कॉफी मेकर, सीसीडी जिस तरह से है उस तरह से है. इसके ऊपर मैंने ब्लॉग लिखा था, और वो ब्लॉग मेरे ब्लॉगिंग साइट के ऊपर में. प्रमोशन मैंने Pinterest से किया है. Pinterest पे मैंने एक इमेज क्रिएट की, और ये ट्रैफिक मैंने डाइवर्ट की अपने वेबसाइट के ऊपर. ये ब्लॉग मैंने लिखा हुआ है, इस ब्लॉगिंग साइट के ऊपर में ट्रैफिक आ रही है. ओके, अब इस ब्लॉगिंग, एक सिंगल ब्लॉग के ऊपर में आई एम अर्निंग नियर अबाउट 25,000 रुपीज इस सिंगल ब्लॉग के ऊपर में. वो इसलिए क्योंकि यहां पर कितने लोगों ने दिखा है ब्लॉग, 599 लोगों ने दिखा है, और उसमें से कई लोगों ने मेरा प्रोडक्ट स्टारबक्स के कूपन्स लिए हैं, और स्टारबक्स कूपन जाकर स्टारबक्स में कॉफी पी है. तो स्टारबक्स इज पेइंग टू मी फॉर राइटिंग दिस ब्लॉग. प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड. ओके, दिस इज व्हाट द डिजिटल मार्केटिंग. मैंने अपना एक चैनल क्रिएट किया सोशल मीडिया पे, Pinterest के ऊपर में. Pinterest में मैंने इमेज पोस्ट की, यहां से लोग इस ब्लॉग के ऊपर में आ रहे हैं, इस ब्लॉग के ऊपर में लोग पढ़ रहे हैं, और स्टारबक्स मुझे पे कर रहा है. तो यही है डिजिटल मार्केटिंग का ओवरऑल गेम गाइस, जहां पर आप एक चीज जो भी आपका इंटरेस्ट है उस रिलेटेड, सपोज ये मैं डॉगी के ऊपर ब्लॉग लिखा होता, सपोज मैं सिंगिंग के ऊपर लिखा होता, या किसी सॉफ्टवेयर के ऊपर लिखा है, मैंने रिव्यू दिया, मूवी रिव्यू लिखा हुआ है. तो सबका जो है आपको वी हैव टू क्रिएट योर ओन बेस. लाइक इंस्टाग्राम के ऊपर में जैसे आप शुरू करते हो, या फेसबुक के ऊपर में, वहां पे काफी ट्रैफिक हो गई है. तो यू हैव टू चूज अ चैनल. दीज आर द चैनल्स व्हिच आर क्वाइट इंप्रेसिव इन द ईयर 2021. आने वाले साल के लिए Pinterest और पॉडकास्ट काफी बड़े चैनल्स होने वाले हैं. तो स्टार्ट फोकसिंग ऑन दिस चैनल्स. अगेन स्टार्ट क्रिएटिंग कंटेंट. अगेन कंटेंट किस तरह से होना चाहिए, जैसे मैंने कई बार कहा है अभी अपने इस सेशन के दौरान,
कि यू हैव टू क्रिएट योर वीडियोस, यू हैव टू क्रिएट योर ऑडियो फाइल्स. सपोज हम लोग यूट्यूब यहाँ पर गूगल के ऊपर में है और मैंने ये सरकारी जॉब यहाँ पे कीवर्ड यूज किया है, तो मैंने टाइप किया है. इन फ्यूचर जैसे यू नो, आई थिंक अलेक्सा आपको पता है, सीरी पता है आपको, ओके आप लोगों को वॉइस कमांड्स देने शुरू करने हैं. जैसे मैं कहूंगा पे सरकारी जॉब्स, तो ये साइट यहाँ पे ओपन होनी चाहिए. दिस इज व्हाट द फ्यूचर ऑफ डिजिटल मार्केटिंग. तो उस तरह की वेबसाइट, उस तरह के ब्लॉग्स क्रिएट करना शुरू करना है वॉइस कमांड वाले. तो दिस दैट इज व्हाट द फ्यूचर. ओके, सो यू हैव टू बी रेडी फॉर दैट फ्यूचर. यू हैव टू क्रिएट योर कंटेंट in the voice recording, in video recording. आप लाइव स्ट्रीमिंग कर सकते हो और वहां से भी अर्निंग शुरू हो सकती है आपकी. और ये हम लोग डेली बेसिस पे करते हैं. माय कंपनी इज डूइंग दिस ऑन डेली बेसिस. नाउ लेट्स कम ऑन टू द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. हम लोगों ने बहुत सुना है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आई थिंक आप लोगों ने भी काफी सुना होगा. जितने भी गूगल प्लेटफॉर्म है या फेसबुक है, जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है, दे आर बेस्ड आउट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. बिकॉज हम लोग जब भी गूगल के ऊपर जाते हैं तो हम लोगों का एक होता है कि हम गूगल हमारे बारे में सब कुछ जानता है. तो वो कैसे जानता है? विद द हेल्प ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. मैं आपको दिखाऊंगा कि गूगल कैसे आपकी इंफॉर्मेशन कैप्चर कर रहा है. तो देयर इज अ टूल कॉल्ड गूगल एनालिटिक्स. वो टूल के थ्रू जो मेरे साइट के ऊपर में, मेरी वेबसाइट के ऊपर में जो भी लोग आते हैं, वो लोग किस तरह से इंटरेक्ट करते हैं, क्या करते हैं एग्जैक्टली, वही मुझे यहां पर इन साइट्स के ऊपर में पता चलता है. ओके, सो यहां पर 107 लोग आए हुए हैं. हमारे क्लाइंट है सरस्वती इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी. ओके, सो यहां पर उनका इंप्रेशंस किस तरह से, कौन से पार्ट से आए हुए हैं. आई कैन सी ऑल द डिटेल्स ओके फ्रॉम द ऑडियंस लिस्ट. And this is was the so overview. So I can see how many users are coming onto the website. Then I can see how many active users over there. आप देख सकते हैं यहाँ पर 107 यूजर आए हैं लास्ट वीक. 74 न्यू यूजर्स हैं. उसके बाद में मैं ये देख सकता हूँ कौन से एरिया से आए हैं वो लोग. तो लेट्स लुक फॉर द area. Yeah, so this is the age group 18 to 24, then gender, male female का percentage, then geolocation, languages they speak, location they belong to. So I can see each and every details of my user. Okay, so I can see here जो है इंडिया से 103 लोगों ने विजिट किया है. यूनाइटेड स्टेट से 3 लोगों ने किया है. फ्रांस से 1, इंडोनेशिया, ओमान. तो ये मैं चेक कर सकता हूँ डेली बेसिस पे. और दिस इज व्हाट द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. सो अगेन मैं यहाँ पे ये बोलने की कोशिश कर रहा हूँ आपको कि आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समझने के लिए अगेन कोडिंग की जरूरत नहीं है यहाँ पर, या टेक्नोलॉजी की जरूरत नहीं है. ये टूल्स समझने की जरूरत है. टूल्स कैसे यूज करते हैं, जो ये टूल्स मैं यूज कर रहा हूं आपके सामने. तो ये टूल्स फ्रीली अवेलेबल है. गूगल एनालिटिक्स, गूगल सर्च कंसोल, गूगल ट्रेंड्स, ये टूल्स गूगल के ऊपर में अवेलेबल है. आप जा सकते हो, अपनी वेबसाइट क्रिएट कर सकते हो. 2 टूल्स को इंटीग्रेट करके आप ट्रैकिंग शुरू कर सकते हो अपने यूजर्स की. और फाइनली इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग. इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग आपको सबको पता है, आई थिंक, बिकॉज एवरीवन इज इन्फ्लुएंसर नाउअडेज. इंस्टाग्राम के ऊपर में, यूट्यूब के ऊपर में. नाउ आई एम एन इन्फ्लुएंसर फॉर डिजिटल मार्केटिंग प्रोडक्ट्स. इफ आई एम पिचिंग if I pitch some digital marketing related product, definitely you will ensure or you will buy those products. तो इसी को influencer marketing कहते हैं हम लोग. So influencer marketing again is going to be big thing in digital marketing. और I think time is not permitting me, so I think I'm just winding up with 2 more slides. This is the scope of digital marketing. Okay, किस तरह की positions available होती है digital marketing में, company to company. Like you can start your career with interns and then executive, then SEO executive, link building specialist, social media specialist, Google Ads specialist, email marketing specialist, web analyst, online reputation executive. Again higher level पर अगर जाते हो, if you have experience of 1 year or 2 years, then you will be working as a manager like digital marketing strategist, social media manager, digital marketing head,
या पेड एडवर्टाइजिंग मैनेजर. सो ऑल दिस डेजिग्नेशंस आर अवेलेबल इनटू द इंडस्ट्री. और ऐसी कोई भी इंडस्ट्री नहीं है जहां पर डिजिटल मार्केटिंग की ओपनिंग्स नहीं है अभी एट प्रेजेंट. जॉब्स जो है मार्केट से जा चुके हैं बिकॉज ऑफ पैंडेमिक, लेकिन इसके बावजूद डिजिटल मार्केटिंग के जॉब्स ओपन है. वी आर वर्किंग, माय कंपनी इज वर्किंग 24/7 ऑन द प्रोजेक्ट्स बिकॉज उतने सारे प्रोजेक्ट्स हैं. ऑल्दो मैं बता सकता हूँ पेमेंट्स उतने अभी नहीं आ रहे, लेकिन डेफिनेटली काम बहुत है. और इस तरह की सैलरीज अवेलेबल है आप लोगों के लिए. अगर आप ज्वाइन करते हो एज अ फ्रेशर, योर सैलरी माइट स्टार्ट फ्रॉम 2.5 lakhs per annum and then it might go to, it depend upon your skill. So you have to build your skill. वो उसी पे आ रहा हूँ, उसी पॉइंट पे आ रहा हूँ. You have to create your interest and you have to build your skill and demand your salary from the companies where you are going for the interview. Instead of उनको हमको ये बोलना है कि हमको इतनी सैलरी चाहिए, हम लोगों को ये बोलना है कि मुझे इतनी सैलरी मिलेगी तो मैं काम करूंगा. उसके लिए आपको कुछ टेक्निकल स्किल्स, कुछ स्किल्स जो है आपके डिजिटल मार्केटिंग के, वो आप उसमें स्पेशलाइजेशन करना पड़ेगा. तो इस तरह के पैकेजेस अवेलेबल हैं और ये पैकेजेस अभी भी अवेलेबल है. लोग इतना देखिए 1 to 4 ईयर का एक्सपीरियंस का 4 to 6 लाख का पैकेज हो जाता है. 6 साल के ऊपर में 8 लाख का पैकेज. और अगर आपकी स्किल्स प्रॉपर हो तो यू विल स्टार्ट अर्निंग 10 lakhs per annum within 2 to 3 years of time. I have seen those people are those people who are working with 2 to 3 years experience and getting paid 12 lakhs per annum. So that kind of and again qualification is not not that important here, because digital marketing skill is important. Means if you are a graduate from science or if you are a graduate from engineering, okay, industry value you according to your skills, not as per your degrees. Okay, so आपको अपनी skills जो है वो improve करनी है. और skills जो मैंने कही है, affiliate marketing या फिर social media marketing या फिर paid advertisement या फिर Google Analytics, all this skill has to be, you have to improve your skill on to larger extent and demand your salary, or you can start your own business as well. इसके अलावा मेरे पास में एक फाइनल ये भी है हेल्पफुल एक साइट है. ओके, आई थिंक यू हैव टू विजिट माय यूट्यूब चैनल. और कल एक वीडियो रिलीज हुआ है और उस वीडियो के ऊपर में 5 टाइप्स दिए मैंने वेबसाइट थीम्स के. उस थीम्स में से आपको एक थीम के बारे में एक थीम सिलेक्ट करनी है और मुझे आपको 100 वर्ड्स में आपको उस टॉपिक के बारे में लिख के भेजना है. जो मुझे टॉप 2 एंट्रीज जो है जो उस टॉपिक के बारे में लिख के देगी प्रॉपर, जो भी सिलेक्ट होंगे, आई विल शेयर दोस लिस्ट विद मीनल मैम. ओके, एंड ज़ैपकोड विल क्रिएट अ फ्री वेबसाइट फॉर यू, ब्लॉगिंग वेबसाइट. सो यू विल 2 लोगों के लिए हम लोग वेबसाइट बना के देंगे और उनकी वेबसाइट हमारे, उनका डोमेन भी हम लोग परचेज करेंगे, प्लस हमारे सर्वर के ऊपर में वो होस्ट रहेगी. नेक्स्ट ईयर आपको अपना सर्वर पे शिफ्ट कर सकते हो. इफ यू वांट टू स्टार्ट योर डिजिटल मार्केटिंग करियर, वी विल स्टार्ट हेल्पिंग यू एज वेल एज वी आर कंडक्टिंग क्लासेस एज वेल. डिजिटल मार्केटिंग एवरी वीकेंड, सैटरडे संडे क्लासेस होते हैं हमारे. If you would like to join, then you can ping to Minal ma'am and tell her that about your interest. But अगर आप लोग अपना करियर खुद शुरू करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो. You just need to go and search as much as detail of digital marketing and create your own domain or your website. We will try to help you. Zapcode will help you to create your first website for 2 people from your batch and start your career. So that's it. Thank you very much. If you have question, you can ask me. Okay. Thank you so much, sir, for your fabulous guidance. Sir, you have given literal very good concepts about the digital marketing world. This world was literally unexplored till so many years. Thank you so much again. Now, I would like to tell all of you about doubt session. If you have any queries, please you can ask now, or you can put it in a chat box. Even you can ask your queries to Wankhede ma'am, and she will convey your doubts. Now there is a little announcement that you have to fill the feedback form. The link will be in the chat box. Thank you so much, sir, and thank you so much, Wankhede ma'am. Thank you, Vinita. मैम टॉपिक क्या है वो रिटर्न राइटिंग का? कौन सा टॉपिक सर ने बोला लिख के सेंड करने का. हाँ, आपको YouTube चैनल विजिट करना है. ओके, डिजिटल गुरु संजोग जाना है, YouTube के ऊपर में सर्च करना है. वहां पर कल का वीडियो जो है उसको ओपन करना है
और उस वीडियो को देखना है कंप्लीटली, और उस वीडियो के ऊपर में 5 वर्डप्रेस की थीम्स दी हुई है, वेबसाइट की थीम्स, उसमें से कोई भी एक वर्डप्रेस की थीम सिलेक्ट करनी है, उसके ऊपर में 100 वर्ड्स का आर्टिकल लिखना है आपको। ओके सर। 100 वर्ड का आर्टिकल, ओके, और 100 वर्ड्स टू 500 वर्ड्स, whatever I think word length you can stretch, okay, and then we will shortlist 2 people from writers or content writers among you, and we will create a website for you. ओके सर, थैंक्स सर। सर Yeah. सर उसको आपको पर्सनली सेंड करना पड़ेगा क्या? ईमेल आईडी आप लिख सकते हो, 1 मिनट, आई थिंक मैं मैम को ईमेल आईडी दे देता हूँ, आई थिंक sanjog@zapcode.com या फिर sanjog.meshram@gmail.com, इसके ऊपर में है ईमेल आईडी। सर सेंड कर दो ना। 1 मिनट रुको आप। Yeah, so this is the email ID. I hope you can see. You can write down. This is WhatsApp ID. You can WhatsApp or you can write me on this email ID. हेलो सर। Yeah. सर हाउ टू क्रिएट ब्लॉग्स एंड ऑल, इसके भी आपके वीडियोस मिलेंगे क्या वहाँ पे? हाँ, उसके बाद ब्लॉग है, किस तरह से आपको ब्लॉग क्रिएट करना है, नीश फाइनल कैसे करनी है, जैसे मैंने अभी अमेज़न की नीश बताई आपको मैंने, ओके, तो वो क्रिएट कैसे करनी है, blogger.com क्या होता है, वर्डप्रेस अगेन इज अ ब्लॉगिंग साइट, तो यहाँ पर जाकर आप खुद वेबसाइट क्रिएट कर सकते हो, ओके, तो उनके उसके वीडियोस भी है वहां पर, और नहीं भी है सपोज तो आप मुझे वहां पे कमेंट कर सकते हो, सब्सक्राइब टू चैनल, ओके, और मुझे आप कमेंट कीजिए सब्सक्रिप्शन में, या फिर मुझे आई थिंक व्हाट्सएप पे भेजिए, जो मैंने यहाँ पर दिया है आपको व्हाट्सएप नंबर, और मैं आपको डिटेल शेयर करूंगा। डोंट वरी, आई थिंक यू कैन बी अ ब्लॉगर, अगर आप सही में लिख सकते हो। देखो 2-3 चीजें हैं मैंने कही अपने लेक्चर में, एक तो है जो लोग कंफर्टेबल है वीडियो में, उन्होंने अपना यूट्यूब चैनल के ऊपर में वीडियोस अपलोड करने हैं, जो लोग लिखने में अच्छे हैं उनको अपना ब्लॉगिंग पेज क्रिएट करना है, जो लोग बोलने में अच्छे हैं उनको अपना पॉडकास्ट क्रिएट करना है, ओके, और तीनों चैनल के ऊपर में इनकम है, बहुत ज्यादा इनकम है, और ये लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी के लिए है आपके, मतलब लाइफ टाइम का करियर आप गोल फाइनल करने वाले हो। और अगेन मैं ये बताना चाहूंगा, डिजिटल मार्केटिंग इज टीम वर्क। अगर आप अच्छे ब्लॉगर हो तो अच्छे डिजाइनर नहीं बन सकते, तो आपको डिजाइनर भी बनना है इन फ्यूचर धीरे धीरे। अगर आप अच्छे वीडियोस बना रहे हो तो यू हैव टू बी गुड एडिटर एज वेल, आपको एडिट भी अच्छा करना है वीडियो अपना। तो रियल टाइम में आपको मल्टीपल स्किल्स लेके आनी है, आपको अपनी टीम्स भी लगेगी इन फ्यूचर, बहुत सारी कीवर्ड्स पे काम कर सके, एसईओ पे काम कर सके, कंटेंट जनरेट कर सके, लेकिन स्टार्ट तो आपको अकेले करना है, ओके, और दैट इज व्हाट आई थिंक आई एम ट्राइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड, कि आप लोग शुरुआत करो, जो भी आपकी स्किल होगी वहां से, जो भी आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट होगा वहां से, और हर चीज के लिए इंटरेस्ट जरूरी है, नॉलेज बाद में आता है। अगर हम लोग नॉलेज लेने के लिए जाएंगे तो बहुत सी नॉलेज मिल जाएगा, लेकिन नॉलेज के भरोसे पे आप 2-4 साल 5 साल 10 साल का करियर डिफाइन नहीं कर सकते हैं। आपका इंटरेस्ट होना चाहिए, उसके बाद आप अपने आप नॉलेज गेन कर लोगे और मजा करोगे, ऐश करोगे उस नॉलेज के साथ में, उस इंटरेस्ट के साथ में। तो आप लोग क्रिएट करो अपना कंटेंट क्रिएट, जैसा भी ये हमारा सेशन हुआ है, एक्चुअली मेरे एक फ्रेंड है कल, और मुझे मेरा डिस्कशन हो रहा था उनका कि इस सेशन में अगर मैं अगर यहाँ पर 1 आवर अगर दे रहा हूँ यहाँ पर, तो मेरा क्या बेनिफिट है मेरा खुद का। तो मैंने कहा कि ये कंटेंट जो है मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, जो रिकॉर्डिंग आई थिंक जो मिनल मैम रिकॉर्ड कर रही है, वो सेशन अगर मैं अपने यूट्यूब चैनल पे ऊपर डालूंगा या फिर मैं पॉडकास्ट पे डालूंगा, तो आई एम गोइंग टू अर्न लॉट ऑफ मनी आउट ऑफ इट, ओके। सो ये कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं हम लोग, वी आर क्रिएटिंग कंटेंट, सो दिस इज व्हाट यू हैव टू डू इट। आई होप आई आंसर्ड योर पॉइंट। सर या सर अपना कोई अगर साउंड कोई वीडियो बना कर डाले, लेकिन अपना इतना कोई पहचान नहीं रहता है, तो उसको पॉपुलर करने के लिए क्या करना पड़ता है? देखो, पहले तो वीडियो अगर बनाना है आपको, व्हाट्स योर गुड नेम? आई एम सॉरी, माय नेम इज संदीप गुप्ता। ओके संदीप, देखो पहले वीडियो बनाने के लिए बहुत बेसिक चीज की इंपॉर्टेंट, मैं बार बार उसी पे आ रहा हूँ, आपको तो पहले डिसाइड करना है आपका इंटरेस्ट क्या है, ओके। अगर आप समझते हो कि आप लोग वीडियो बनाना चाहते हो, कुछ मिमिक्री करना चाहते हो, या फिर कुछ फनी वीडियोस बनाना चाहते हो, ओके, तो देन यू हैव टू क्रिएट योर यूएसपी। बिफोर ये सोचना बंद कर दो आप
कि मुझे फॉलोअर्स कैसे आएंगे। पहले आप अपनी यूएसपी क्रिएट करो, मतलब यूनिक सेलिंग। आपको अगर मिमिक्री करना चाहते हो तो किसकी मिमिक्री में अच्छे हो, या अगर आप फनी वीडियोस बनाना चाहते हो मोस्टली सन जैसे, तो उस चीज में आप अच्छे हो, या फिर कुछ या फिर मैं जैसे एजुकेशनल वीडियोस बनाता हूं, तो एजुकेशनल वीडियो में आपके पास क्या शेयर करने के लिए, पहले कंटेंट पे फोकस करो। ओके, एक बार आपका कंटेंट अच्छा बनेगा तो यूट्यूब आपको खुद हेल्प करता है ग्रो करने के लिए। यूट्यूब खुद हेल्प करता है, किसी और की जरूरत नहीं है आपको। यूट्यूब को पता चल जाता है कि आपका क्वालिटी कंटेंट है, और यूट्यूब आपका कंटेंट मैक्सिमम लोगों तक पहुंचा देता है। तो डोंट वरी अबाउट किस तरह से ग्रो करेगा, आई एम देयर टू हेल्प यू आउट। ओके, अगर आप शुरू करते हो। दूसरा और एक इंपॉर्टेंट चीज है, जो भी यूट्यूब के ऊपर वीडियो बनाना चाहता है, जो भी, उनको एडिटर होना जरूरी है, उनको एडिटिंग में इंटरेस्ट आना जरूरी है। क्योंकि वीडियो मेकिंग में, जैसे मैं अभी बोल रहा हूं आपके सामने, एक वीडियो क्रिएट हो गया, लेकिन इस बोलने के साथ में मुझे एडिटिंग करना जरूरी है, क्योंकि कुछ मुझे माइनस करना है, कुछ प्लस करना है, कुछ डिजाइन एलिमेंट ऐड करना है, कुछ मुझे बैकग्राउंड म्यूजिक देना है, कुछ मुझे इमेजेस डालनी है। वो एडिटिंग मैं खुद करता हूं वीडियोस बनाते वक्त में, वो एडिटिंग आपको सीखनी है। और फ्री टूल्स भी अवेलेबल है गाइस, यूट्यूब वीडियोस बनाना है आपको तो एडिटिंग के फ्री टूल्स भी अवेलेबल है। सोनी वेगास करके एक टूल है जिसको आप फ्रीली डाउनलोड कर सकते हो। वो पेड अगर आपको चाहिए तो उसके लिए 5000 रुपीज लगता है, लेकिन फ्री में भी वो आपको मिल जाता है, और उसको डाउनलोड करना है, उसको सीखो आप लोग और एडिटिंग करना शुरू करो। वीडियो मेकिंग के साथ साथ एडिटिंग अगर आता है आपको, तो आपके वीडियो को वायरल होने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन आप लोग कोई भी वीडियो बनाओगे विदाउट एडिटिंग, क्योंकि वीडियो मेकिंग में कॉन्फिडेंस आएगा। अगर मेरा आप पुराना वीडियो देखोगे और अभी की वीडियो देखोगे तो आपको जमीन आसमान का डिफरेंस नजर आएगा, कॉन्फिडेंस चेंज होते रहता है। लेकिन एडिटिंग में आपको धीरे धीरे एक्सपर्ट होना है। यू हैव टू एंजॉय द प्रोसेस ऑफ मेकिंग वीडियोज। तो वो प्रोसेस में जो मजा आने लगेगा, डेफिनेटली आपको संदीप, आपको फॉलोअर्स आना शुरू होंगे। सर मीन्स कि सर मैंने सोचा हो कि अपना स्पोर्ट्स है तो हेल्थ एंड हाइजीन में कुछ वीडियो बनाऊं, तो और योगास। या ग्रेट 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 आइडिया, बना सकते हो आप योगास पे या फिर हेल्थ पे ना, क्योंकि अभी तो पैंडेमिक के बाद में काफी स्कोप है उसका, और काफी लोग बना भी रहे हैं। आप लोग कर सकते हो उसके साथ, अच्छा है आइडिया। यस सर। एनी मोर क्वेश्चंस गाइस? सर या सर जैसे अभी कोई पोएट्री राइटिंग करता है लाइक हिंदी में, तो वो भी हम लोग किसी तरीके से वो मतलब कर सकते हैं क्या उसमें कुछ? प्रिया बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। आई थिंक सब लोग सुनो, आप लोग, प्रिया का काफी अच्छा क्वेश्चन है ये। कैसा होता है कि हम लोग बहुत हेजिटेट करते हैं हमारी लैंग्वेज के कारण। ओके, इंग्लिश में बात करना है, या फिर हिंदी में करना है, या मराठी में करना है, या गुजराती, जो भी आपकी लैंग्वेज है। मैं बोलूंगा कि आप लोग ये दिमाग से निकाल दो। ओके, आप लोग जो लैंग्वेज में कंफर्टेबल हो उस लैंग्वेज में पोएट्री करो या ब्लॉग लिखो। हिंदी के ब्लॉग के ऊपर में भी आपको 1 लाख रुपया कमा सकते हो, और मराठी ब्लॉग के ऊपर में भी कमा सकते हो, और इंग्लिश ब्लॉग के ऊपर में भी कमा सकते हो, क्योंकि गूगल के ऊपर में हर प्रकार का क्राउड है वहां पर। ओके, तो अगर आप हिंदी में पोएट्री करते हो प्रिया तिवारी, या फिर यस सर। आप अगर जो भी लैंग्वेज में कंफर्टेबल हो, जस्ट क्रिएट अ क्वालिटी कंटेंट। किसी का कॉपी मत करो, हम लोग कॉपी नहीं करना चाहते हैं। ओके, कॉपी करोगे तो गूगल को वो भी पता चल जाता है कि आपने कहां से कॉपी किया है। तो कॉपी कंटेंट, अगर एक सिंगल वर्ड भी किसी को कॉपी करते हो तो भी पता चल जाता है गूगल को, क्योंकि गूगल जो है इंटेंशन बेस्ड प्लेटफॉर्म है। इंटेंशन मतलब उसको नहीं समझ में आता गूगल को कि क्या उसमें वीडियोस है, क्या कंटेंट लिख रहे हैं, उसको इंटेंशन समझ में आता है कि किस इंटेंशन से लिख रहे हैं। अगर हमारा इंटेंशन हमारे कविता में या फिर हमारे पोएट्री में जो भी अच्छा हो, तो गूगल को समझ में आता है, और गूगल विल स्टार्ट प्रमोटिंग योर कंटेंट। ओके, और वो हिंदी में हो या मराठी में हो, बस आप कंटेंट क्रिएट करो और पोस्ट करो, ब्लॉगिंग साइट बनाओ और उसको प्रमोट करना शुरू करो कीवर्ड के वाइज। अगेन मैंने जिस तरह से आपको बताया अभी, सरकारी जॉब्स के ऊपर में जिस तरह के एडवर्टाइजमेंट होता है उसको बोलते हैं एडसेंस। तो एडसेंस की अप्रूवल अगर आपको चाहिए तो आपको कम से कम 20 से 25 पोएट्री लिखनी पड़ेगी गाइस, सब लोगों के लिए। ओके, अगर आप कोई ब्लॉगिंग पेज बनाते हो तो 20 से 25 ब्लॉग लिखने पड़ेंगे आपको, 1000 वर्ड्स के पर ब्लॉग मिनिमम। और उसके ऊपर में मतलब कितना हो गया, 20 से 25 मतलब 25,000 वर्ड्स का कंटेंट हो गया। वो कंटेंट यूनिक होना चाहिए, कॉपीड नहीं होना चाहिए। उसी तरह से आप पोएम बना रहे हो तो 20 से 25 पोएम लिखो, जैसे हम लोग पोएट्री की बुक लिखते हैं। और पोएट्री की बुक आप सिंगल पोएट्री अगर दोगे
तो उसमें उससे ज्यादा आप अगर बुक दोगे किसी को तो ज्यादा इंप्रेसिव लगता है। तो आप जो है पोएट्री लिखो, सिंगल सिंगल पोएट्री डालना शुरू करो, धीरे धीरे अपना चैनल बिल्ड करो, मतलब अपना पेज बिल्ड करो, डेफिनेटली यू विल ग्रो स्वाति। और बहुत ज्यादा स्कोप है रीजनल लैंग्वेजेस में, आप भोजपुरी में भी लिख सकते हो, बहुत ज्यादा स्कोप है इन लैंग्वेजेस में। इनफैक्ट गूगल इन लैंग्वेज इसको खुद प्रमोट कर रहा है अभी, हिंदी और इंग्लिश से भी रीजनल लैंग्वेजेस में पुश कर रहा है काफी गूगल। थैंक यू सो मच सर। और सर Hello. 10 to 15 पोएट्रीज हैं, बट Okay. उसको एक्सप्लोर कैसे करने का वही नहीं पता है एक्चुअली। देखो 10 to 15 पोएट्रीज है तुम्हारे पास में, तो पहले तो जैसे मैंने कहा आपको अपना एक पेज क्रिएट करना पड़ेगा। आपको ना blogger.com या फिर वर्डप्रेस, ये दोनों में से एक टूल सीखना होगा। ओके, इन टूल्स में जाकर आपको एक पेज क्रिएट करना होगा और वहां पर जाके अपनी पोएट्रीज पेस्ट करना शुरू करो, और उस पोएट्रीज के ऊपर वो पोएट्री जो है अपने जो नोन पर्सन है उनको भेजना शुरू करो पहले तो, और वहां से ट्रैफिक आना शुरू होना चाहिए। जैसे जैसे ट्रैफिक आएगी वैसे वैसे आपके कीवर्ड जो पोएट्री में वर्ड्स है वो कीवर्ड का परफॉर्मेंस गूगल के ऊपर में इंप्रूव होता रहेगा। आप विद इन 3 to 4 मंथ आपके ब्लॉग रैंक करना शुरू करेंगे नंबर 1 पेज के ऊपर में, अगर अच्छी तरह से कीवर्ड आप करते हो, कीवर्ड ऑप्टिमाइजेशन, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। और उसके बाद में you have I think there's limitless heights to achieve. एंड सर लाइक अगर उसको मतलब उसको पोएट्री को कोई रजिस्ट्रेशन वगैरह नहीं करवाना पड़ेगा ना? नहीं, वो अगर आपकी कविता है यस सर, खुद की लिखी हुई, खुद की लिखी हुई। हाँ, तो नो नीड टू रजिस्टर, यू जस्ट नीड टू, आपको क्या करना है प्रिया, आपकी कविताएं या फिर आपकी जो पोएम्स होंगी उसको कोई कॉपी कर सकता है, राइट? तो उसके लिए एक टूल आता है जिसको आप लिख लो, जिसको कहते हैं कैनोनिकल टैग। कैनोनिकल टैग, ओके। उस कैनोनिकल टैग को आप जब वेबसाइट बनाओगे, जब पोस्ट करोगे, आप देख लो गूगल के ऊपर में वो भी मिल जाएगा आपको किस तरह से कैनोनिकल टैग डालने हैं। आपको वो कैनोनिकल टैग अपने साइट के ऊपर डालना है। जब भी आपका पोएट्री कोई कॉपी करके अपनी वेबसाइट पे डालने की कोशिश करेगा तो गूगल को पता चलेगा कि ओरिजिनल आपका है उस कैनोनिकल टैग के कारण, और उनकी साइट को गूगल डुप्लीकेट कंटेंट कहेगा और उनकी साइट कभी भी रैंक नहीं होगी, सिर्फ आप ही की पोएट्री रैंक होगी। ओके सर, थैंक यू सो मच। सर या सर, अगर किसी ने किसी का पोएट्री लिया और उसको मॉडिफाई किया तब सेंड किया, फिर भी वो कॉपीराइट समझाएगा? हाँ, और उसने पोएट्री लिया और मॉडिफाई किया, ओके, तो कंटेंट दिखाएगा उसमें से 50% प्लगराइज्ड या फिर 80% प्लगराइज्ड। जितना भी आप कॉपी करने वाले हो, जितना आप ऐड करने वाले हो, तो प्लगरिज्म का परसेंटेज भी दिखाता है वो, ओके। हाँ, लेकिन 100% आप यूनिक कर लो उस पोएट्री को, सिमिलर थीम पे करते हैं लोग, तो वो यूनिक हो जाएगा। मीन्स की सर, जैसे कि अपने यहाँ पे किसी का एप्पल हिंदी में बोलते, हाँ, और हिंदी में एक शब्द बोलते, सेब बोलते, हाँ, तो अगर इस सेंटेंस से अगर उस पोएम का अगर कुछ नेम चेंजिंग करके उस पोएम को रीचेंज करते हैं लोग, करते हैं, कर सकते हो वैसा, करते हैं लोग, वो करते हैं। लेकिन मैं बताऊं आपको, ये सब शॉर्ट टर्म चीजें हैं संदीप, ये सब शॉर्ट टर्म है। लॉन्ग टर्म के लिए अगर जाना है ना, तो अगेन मैं उसी पे आ रहा हूँ, पहले फिर से पॉइंट नंबर 1 पॉइंट, इंटरेस्ट। आपका जो इंटरेस्ट है उससे आप चिपके रहो, उसी पे लिखो, ताकि आप आने वाले 10 साल के लिए अपना करियर प्लान करो। आप दो साल के लिए, 6 महीने के लिए करियर प्लान नहीं कर रहे हो, राइट? 10 साल के लिए करोगे, 20 साल के लिए करोगे, तो आप इंटरेस्ट में जाओ ना। आप लोग किसी और को हम लोग कॉपी करने का क्यों सोचे? मीन्स की मैं एक फ्रेंड है, वो आर्टिस्ट है, मीन्स की आर्ट ड्राइंग्स बनाता है, स्केच बनाता है और पोर्ट्स, डिजाइनिंग पोर्ट्स बनाता है, लेकिन उसने अपना जो आईडी है इतना फेमस नहीं किया है। अगर मैं उसी का ही पिक लेकर सेंड करता हूँ तो ये इलीगल तो नहीं कहलाएगा ना? नहीं, अगर उसने वो पोस्ट जो है इलीगल नहीं होगा। अगर वो कैसा होता है, इसको इंडेक्सिंग बोलते हैं। गूगल जो है इंडेक्स करता है हर पोस्ट को, हर इमेज को, हर कविता को, हर आर्टिकल को, जितने भी वीडियोस को इंडेक्स करता है। इंडेक्स मतलब उसको रजिस्टर, मतलब नोट करता है उसकी, भैया ये कंटेंट आया है। जिस तरह से हम लोगों को सपोज भूख लगती है तो हम लोग होटल्स ढूंढते हैं या घर में बोलते हैं मॉम को, यार मुझे खाना चाहिए जल्दी, ओके, तो हमको कंट्रोल नहीं होता। तो उसी तरह से गूगल भी भूखा है। गूगल किस चीज का भूखा है? अच्छे कंटेंट का, ओके। जैसे ही अच्छा कंटेंट गूगल के ऊपर में आता है, वेबसाइट के ऊपर में आता है, सॉरी, वेबसाइट के ऊपर में, गूगल खुद वहां पे दौड़ के वो मेल कर लेता है, ओके, और वो उसके पास आ जाता है और उसको इंडेक्स कर लेता है, उसको नोट कर लेता है फटाक से।
तो अगर आपकी इमेज अच्छी है तो वो इमेजेस उसको भी मैं तो अभी इंडेक्स काम कर रहा हूँ। उसको भी इंडेक्स कर लेगा गूगल, और वो आपकी इमेज हो जाएगी। ओके सर। सर लेकिन अगर इमेज डालना रहेगा तो कौन सा वेबसाइट बेटर है? अगर आप लोग इनिशियली शुरुआत करना चाहते हो, पहले तो इमेज मेकिंग के टूल्स होते हैं, ओके, और कुछ फ्री टूल्स हैं जो आप लिख सकते हो, मैं बता रहा हूं जो है। एक तो कैनवा, कैनवा डॉट कॉम। 1 मिनट सर, सर स्टार्टिंग से बोले ना, आपने क्या बोला था? अगर आप लोग इमेज क्रिएट करना चाहते हो तो बहुत लोग कोरल ड्रॉ में करते हैं, राइट, ऐसा कुछ टूल्स होते हैं, लेकिन वो बहुत हेवी टूल्स हैं। अगर हम लोग डिजिटल मार्केटर्स हैं, डिजिटल मार्केटर बहुत सिंप्लीफाइड वे में काम करते हैं। हम लोग कोरल ड्रॉ वाली क्वालिटी भी लेके आना है, लेकिन हम लोगों को जल्दी भी काम करना है, ओके, ये हमारा एटीट्यूड है डिजिटल मार्केटर्स का, फास्ट काम करना है। तो उसके लिए टूल्स है, उसका नाम है canva.com, CANVA, कैनवा, CAN VA, V फॉर विक्ट्री, VA, कैनवा। ओके सर। canva.com। उसके बाद में है हाँ, एडोब स्पार्क, ADOPS। हाँ, एडोबी होता है ना, एडोबी स्पार्क। इसका एक ऐप भी है, और ये दोनों के ऐप है और दोनों के प्लेटफॉर्म है। आप जाओ इस प्लेटफॉर्म के ऊपर में और फ्री में इमेजेस क्रिएट करो गाइस, ओके, और वहां पे आप डिजाइनर बन जाओगे। आपको किसी और का कंटेंट लेने की जरूरत, इमेजेस लेने की जरूरत नहीं, आप खुद के इमेजेस बनाओ। जैसे होता कैसा है, हम लोगों को सबमिशन, जैसे आप लोगों को आपके लेक्चर्स बोलते होंगे कि ये असाइनमेंट सबमिट करो, हम लोग गूगल पे जाते हैं, किसी और की इमेज उठा के पेस्ट करके उसको प्रिंट आउट निकाल के दे देते हैं, लेकिन उसमें मजा नहीं है। खुद की इमेज क्रिएट करो, खुद की इमेज क्रिएट करना है तो ये टूल्स है जहां पे आप अपना कंटेंट क्रिएट कर सकते हो। ओके सर। सर वो हेलो या गो अहेड सर, अगर या मनीषा टेल मी। सर जैसे हम लोग अपना ब्लॉग बनाएंगे, वेबसाइट बनाएंगे, तो उसका फीस भी लगता है ना? हाँ, अच्छा क्वेश्चन किया मनीषा, ओके। आप लोग को बताता हूँ, क्योंकि आप लोग स्टूडेंट्स हो तो आप लोगों के पास में पैसे तो होते नहीं है, ओके। पेरेंट्स जो है जितना देते हैं आपको पॉकेट मनी, वो पॉकेट मनी भी आप लोग जो है बर्गर को पिज्जा खाने में इन्वेस्ट करते हो, लेकिन क्वालिटी काम जो होता है उसमें हमारे पास पैसे नहीं बचते। या मूवीज जाने के लिए पास हमारे पास पैसे आ जाते हैं, लेकिन ब्लॉगिंग के लिए पैसे नहीं आते। एनीवेज, मैं पॉइंट पे आता हूँ। जो क्वेश्चन मुझे पूछा अभी मीनाक्षी ने, मनीषा ने, सॉरी, पैसे लगते हैं क्या ब्लॉग क्रिएट करने के लिए? गाइस, अगर आप ब्लॉगिंग क्रिएट करना चाहते हो और आपके पास पैसे नहीं है तो फ्री में भी ब्लॉगिंग शुरू कर सकते हो, ओके, और उसका नाम है blogger.com। लेकिन अगर आप मंथली बात कर रहा हूं, ओके, मंथली 500 रुपीज अगर खर्चा करना चाहते हो, सिर्फ 500 रुपया, तो आप बेहतरीन से बेहतरीन ब्लॉगिंग साइट क्रिएट कर सकते हो। हम लोग क्या करते हैं, हमारे पास 500 रुपए मिलते हैं, हर मंथ मिलते हैं, अपने पेरेंट्स उतने तो देते हैं पैसे, लेकिन हम लोग क्वालिटी में खर्च नहीं करते हैं हम लोग, ओके। तो अगर आपके पास में मनीषा, अगर आपके पास में यू कैन क्रिएट योर ब्लॉग, योर कॉस्ट अगर 500 रुपीज पर मंथ मैनेज कर सकते हो, तो उसके लिए मैं बता रहा हूँ, फ्री में करना है तो blogger.com के ऊपर में जाओ, जो 500 रुपए है तो वर्डप्रेस के ऊपर जाओ, वर्डप्रेस, 500 रुपीज पर मंथ। ओके सर, ओके सर। सर दोनों का डिफरेंस क्या रहेगा, मीन्स की पेमेंट करने के बाद और फ्री वाला? अगेन गुड क्वेश्चन संदीप। दोनों का डिफरेंस क्या है बताता हूं मैं। ब्लॉगर.कॉम गूगल का है, ओके, और वर्डप्रेस जो है वो आपका खुद का हो जाता है। ये डिफरेंस है। मतलब आप जब भी ब्लॉगिंग करोगे, वो उसका ओनर जो है वो गूगल रहेगा, ओके। जैसे डोमेन है, जैसे मनीषा राठौड़ नाम है, ओके, और मनीषा एक डोमेन बोलते हैं, जैसे वेबसाइट का एड्रेस मतलब डोमेन नेम। अगर मनीषा राठौड़.com ये डोमेन अगर मनीषा परचेस करना चाहती है, ओके, तो ये मनीषा का खुद का डोमेन हो गया। लेकिन सपोज वो फ्री में करना चाहिए blogger.com, तो गूगल प्रोवाइड करेगा। एग्जैक्टली। तो क्या होगा, मनीषा राठौड़ .blogspot.com, मतलब ब्लॉगस्पॉट जो है वो गूगल का आईडी है, वो लग के रहेगा, ओके। अगर पे करते हैं तो मनीषा राठौड़.com, अगर पे नहीं करते फ्री में तो मनीषा राठौड़.blogspot.com। ये डोमेन का डिफरेंस होता है, बस यही डिफरेंस। बट सर जो ब्लॉगर है वो गूगल का है तो ज्यादा पॉपुलर रहेगा, मीन्स की ज्यादा सिक्योर रहेगा। आप किराए के घर में रह रहे हो और खुद के घर में रह रहे हो, कहाँ पे बेटर है? भले ही छोटा घर हो, खुद का घर बेटर है सर। बट सर आप जो ब्लॉगर बोले वो फ्री का भी है और प्लस गूगल का भी है, और जो वर्ड
प्रेस कौन सी वैसे बोले ना, वर्ड प्रेस ऐसे कुछ बोलते ना आपने। WordPress। हाँ, तो उसमें अगर वो आपने बोला कि वो मनीषा, वो वेबसाइट का नाम है मनीषा समथिंग कुछ है, तो अगर इसमें गूगल में उसने हल्का सा भी उसका सिमिलर नेम डाल दिया तो गूगल उसको एक साथ में इतना सा दिखाएगा, लेकिन मनीषा ये सिर्फ डाल देंगे तो फर्स्ट गूगल का दिखाएगा, बाद में वर्ड प्रेस का दिखाएगा ना। नहीं, ऐसा देखो कैसा होता है कि अगेन वो कीवर्ड के ऊपर डिपेंड करता है, वैसा वैसा नहीं है। जैसे मैंने कहा कि खुद की वेबसाइट होना, खुद का ब्रांड, क्योंकि आप खुद का ब्रांड प्रमोट कर रहे हो। जैसे सपोज मैं अपने आप को प्रमोट कर रहा हूँ डिजिटल गुरु संजोग, ओके, और डिजिटल गुरु संजोग डॉट ब्लॉग स्पॉट प्रमोट कर रहा हूँ, इसमें डिफरेंस है। तो प्रमोशन अगर खुद के लिए लॉन्ग टर्म के लिए करना है गाइस, लॉन्ग टर्म के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए ठीक है, अभी आपके पास पैसे नहीं है, ओके, तो आप blogger.com के ऊपर जाओ, आपको एडसेंस का अप्रूवल भी मिलेगा blogger.com के ऊपर में। आप 1-2 साल काम करो उसके ऊपर में, थोड़ा पैसा कमाओ, 6 महीना काम करो और फिर नया साइट शुरू करो वर्डप्रेस के ऊपर में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मैं बोलूंगा अगर आपके पास में, अभी भी मेरा सजेशन यही है कि थोड़े बहुत पैसे है, 500 रुपया पर मंथ अगर आपके पास में, मतलब 6,000 रुपीज पर ईयर का इन्वेस्टमेंट है अगर है, तो डेफिनेटली आपने खुद के साइट के ऊपर जाना। Okay. ओके सर, कम मैं अपने पॉइंट पे आता हूँ। Thank you, sir. Sir. Sir, hello. Hello. Actually, Sudeep, sir is actually very busy. He has actually given the timing for 1 hour, but still we are actually taking so much of time from him. Okay. So Okay, you okay, can ma'am. ask the questions. If definitely you be in touch with him. Okay, and you can be in touch and you can ask your doubts. Definitely, he's going to he's available and he would be definitely solving your doubts. Okay, right? But then since our time is up, we will conclude our seminar here only. Okay. ओके Right? मैम, You can ओके मैम, ask. नो प्रॉब्लम। Okay. Okay. Okay, Thank thank you guys, thank you very much. Okay, सर, Thanks a lot. हेलो सर, वन लास्ट क्वेश्चन। okay, सर, आपने जब बोला था इमेज का, इमेज अगर डाल के उसका इंफॉर्मेशन भी रिगार्डिंग डालना पड़ता है उसमें? इमेज का इंफॉर्मेशन मतलब नहीं समझा मैं। मीन्स कि अगर एक डिजाइनिंग पोर्ट है, हम्म, हाँ, जो इसमें डिजाइन है मीन्स कि वो चाइना का है, तो उसके बारे में कुछ डिटेल भी डालना पड़ता है? देखो संदीप, यस आपका सर। इंटरेस्ट मुझे समझ में आ रहा है, ओके, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ जो आप क्वेश्चन पूछ रहे हो ना, वो एसईओ पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। मतलब कैसा होता है, इमेज बनाते हैं हम लोग, इमेज जैसे आपका नाम है संदीप, ओके, वैसे इमेज का भी नाम होता ही है, और इमेज का नाम जो है उसमें कीवर्ड डालते हैं। जैसे मुझे आपने इमेज बनाई, सपोज बनाई है आपने, क्या आपका क्या इंटरेस्ट था उसको बताया? डिजाइनिंग पोर्ट। हेल्थ में जा रहा, सॉरी, हेल्थ में था ना आपको? सॉरी, हाँ हाँ, हेल्थ में, योगास, योगा योगास एंड एक्सरसाइज। राइट, तो योगा है आपका इंटरेस्ट। तो सपोज आपने लिखा योगा टिप्स, ओके, आपने इमेज बनाई और उसके नीचे लिखा योगा टिप्स, तो योगा टिप्स क्या हुआ? योगा टिप्स हो गया आपका कीवर्ड, ओके, जो गूगल पे लोग सर्च करते हैं योगा टिप्स के लिए। तो इमेज के ऊपर में अगर वो नाम दोगे, उसको बोलते हैं अल टैग, अल्टरनेटिव टैग्स बोलते हैं जिसको, ओके, वो अल टैग यूज करना होता है। ये है एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं मैं। तो उसके लिए आपको एसईओ का क्लास अटेंड करना पड़ेगा, ओके। तो यस सर, यस सर, इमेजेस तो बहुत क्रिएट कर लेंगे, क्योंकि मैं 1 घंटे में तो आपको डिजिटल मार्केटर नहीं बना सकता, राइट? यस सर, यस सर, राइट, तो सॉरी। वो SEO के क्वेश्चन थे आपके। ओके सर, फाइन, नाइस टू मीट यू। सर एक लास्ट क्वेश्चन है मेरा भी। ओके, टेल मी। सर पहले लाइक हम लोग ने ब्लॉगर से स्टार्ट करते, blogger.com से हमने स्टार्ट किया, लाइक वो फ्री में है तो पहले हम लोग उस पे ट्राई करके देखते हैं, एंड जैसे सक्सीड होते रहे वैसे फिर हम लोग इस पे वर्डप्रेस पे भी हम लोग ये कर सकते हैं। हाँ, कर सकते हो। देखो कैसा होता है प्रिया, 2 चीजें हैं। एक तो blogger.com के ऊपर में काम करना शुरू करते हो आप, ठीक है, उसके ऊपर में अगर कुछ कंटेंट, अगर आपने कुछ कॉपीड कंटेंट या किसी का कुछ लोग करते हैं, कुछ भी इमेज डाल दिए, जैसे किसी का ब्लॉगर, लोग क्या सोचते हैं, मैं सिंपल आपको बताता हूँ, बिकॉज यू आर क्वाइट यंगस्टर्स, तो आई डू नॉट हैव हेजिटेशन टू टेल यू दैट, कि सपोज यूट्यूब का वीडियो है, यूट्यूब के वीडियो के ऊपर में बहुत सारे लोग लड़कियों की इमेज डाल देते हैं, ओके, ताकि लोग देखने के लिए आए वो वीडियो और वो वीडियो के व्यूज बढ़े। ये इस तरह के काम जब हम लोग करते हैं तो वो गलत होता है, ठीक है। उसी तरह से blogger.com के ऊपर में जब थोड़ा सा भी गलत काम करते हैं तो blogger.com उस इमेज को, उस पोस्ट को ब्लॉक कर देता है। लेकिन सपोज आपका खुद का है तो ब्लॉक नहीं होगा, ठीक है, उसमें अथॉरिटी blogger.com की है, लेकिन आप शुरू कर सकते हो। लेकिन आपने जो क्वेश्चन किया कि वो कंटेंट जो है
आप बाद में वर्ड प्रेस के ऊपर में शिफ्ट कर सकते हो, राइट? यही क्वेश्चन था आपका भैया? यस सर। सर नहीं, सर एक लास्ट क्वेश्चन नहीं कर सकते प्रिया, यू कैनॉट शिफ्ट कंटेंट फ्रॉम। लाइक सर अगर एक पे स्टार्ट किया तो हमें उस पे ही कंटिन्यूएशन करना पड़ेगा, राइट? नहीं, ब्लॉगर अलाउ नहीं करता, वो फ्री है ना, blogger.com अलाउ नहीं करता, लेकिन आप WordPress के ऊपर में हो और WordPress के ऊपर में आप क्रिएट करना चाहते हो दूसरे साइट के ऊपर में, WordPress पे शिफ्ट कर सकते हो, लेकिन blogger.com पे शिफ्ट नहीं कर सकते आप, वो अलाउ नहीं है। एक क्वेश्चन ओके सर सर, थैंक यू। या Thanks a lot. Thanks a lot. I think the questions are going to be there infinitely. सर many लास्ट questions क्वेश्चन प्लीज will be definitely there. Okay. See, we have actually asked only for 1 hour for him to spend with us. Okay. And then you can definitely ask the doubts later on. Okay. So we'll conclude the session over here. Right. Thanks a lot. Thanks, Sanjog. Okay, sir. Thank you. Thank you, Nice to guys. meet you, sir. ओके मैम Yeah, thank you I'm so going much, to- sir. I'm going to share his number also. You can ask the doubts through that WhatsApp or whatever. Okay. ओके We will be ओके in मैम touch, थैंक okay? यू Yes, ma'am. Okay, No ma'am. problem. Thanks, ma'am. Okay. Okay, Thanks bye-bye. a lot. Thanks a lot to all of you.